A very good afternoon to all of you, dear students and dear listeners of the channel Dialect English Lectures. And me, Muhammad Yasin Baksh from Dialect English Lectures. Welcome to all of you again on this YouTube channel. Dear students and dear listeners, in today's video, we will discuss about the topic or about the character of the drama The Merchant of Venice, penned by or written by very well-known English writer William Shakespeare, and of whom we are talking now in this video. The name of this character, Antonio. प्रिय छात्रों, प्रिय मित्रों और इस चैनल को पसंद करने वालों, आप सभी को मैं मोहम्मद यासीन बख्श डायलेक्ट इंग्लिश लेक्चर्स चैनल के माध्यम से आप सभी को सप्रेम और सादर नमस्कार प्रस्तुत करता हूं। और प्रिय साथियों और छात्रों, आज के इस वीडियो में हम और आप बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक, जिस नाटक का नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके एक प्रमुख किरदार, मुख्य किरदार और सबसे मशहूर किरदार के बारे में, और जिस किरदार का नाम है एंटोनियो। प्रिय छात्रों और प्रिय सुनने वालों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस जो सब्जेक्टिव हैं उनसे कहीं ना कहीं आप प्रेरणा प्राप्त करते रहें। जो इस चैनल का माध्यम है आपको अंग्रेज़ी का कुछ ज्ञान उपलब्ध कराना, जो हमारी कोशिशें हैं, जो कहीं ना कहीं आपके सहयोग और आपके प्रेम से सार्थक हो रही हैं। आज के इस वीडियो में हम और आप एंटोनियो के बारे में जो विचार और विमर्श करेंगे, उस विचार और विमर्श को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में व्यक्त करेंगे, ताकि सभी सुनने वालों को एंटोनियो के उस चरित्र के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में और उसकी अच्छाइयों के बारे में पता चल सके और वो जान सकें। नाउ वी स्टार्ट अबाउट the character Antonio. As we know, the title of the play The Merchant of Venice, and this title means here that there is a one character who is very rich, generous, kindful, humorous and very well known, the character Antonio. And Antonio is the greater and the richer merchant of Venice city. Dear students, as we know about Antonio, that Antonio is very generous and kindful, and he played here a very saddened role in the drama or play. Many of the times Antonio remarked about himself that he is playing a part of saddened character in this world, and this complete world is a stage, as William Shakespeare depicted or narrated about the character Antonio here in this drama. Dear students, as we know the things that the whole play or drama moves around Antonio, it shows here or it seems here that Antonio is the chief or the main character of the drama or play. This is Antonio to whom, or due to his cause, the casket story reveals, the Bond story reveals, and the casket story ends or
completes in end and reaches to its final destination. As we know, this is Antonio in the play of whom everyone praises, and even Bassanio praises of him very much, and the Duke of Venice City takes a greater pain to save his life from the clutches of Shylock. Anyhow, Antonio is the harder follower of Christianity. All these things proved here that Antonio is different from the other characters of the drama, as the other characters depicted or narrated in this whole story or play or drama. This is Antonio. Due to his cause, Bassanio gets success to reach Belmont to try his luck to get married to Portia, and this is Antonio who manages money to his great or a hater rival Shylock, anyhow, to give this amount to Bassanio because he doesn't want to cloud the happiness of Bassanio. And Antonio endangers his life in clutches of Shylock by signing the bond, and in the bond it was mentioned that Shylock would cut 1 pound of flesh from his body. But Antonio didn't care about it, or doesn't care about it before signing, and having signed the bond, he managed money to give to Bassanio. Now, before Bassanio, still when he reaches to his life, when he feels that his life now have to save after receiving the letter of Salerio, Bassanio starts his journey to Venice to save Antonio's life. This is Antonio who never demands his money back to Bassanio. Even he was in danger and he was in the court before Duke when Shylock appeals Duke for justice. And this is Antonio when he feels that he would not live long now. Then he addressed with a letter or by a letter to Bassanio to come so that he would meet to him, not to demand money back. And this is Bassanio who came back just soon to save Antonio's life. Antonio never complains about his danger, about his money, about his life, or about his doings, what he had done for Bassanio, having signed the bond. But there are some negativity in his character. Antonio made a harder line in his heart, having taken of Christianity, and he thinks that Christianity is the superior, Christianity is the greatest, Christianity is the first and the last thing to follow in this world. And this is the cause Antonio hates Shylock, because Shylock was Jew. Shylock followed Judaism. And the other one important thing, Antonio hated Shylock because
The one thing is that Shylock followed Jewisdom, and the other thing is that Shylock borrowed, or Shylock lended money to others, to the needy, having taken high interest rate, and Antonio lended money to the needy ones without pie or without charges any single pie of interest rate. And this is the cause which downfalls the interest rate in Venice city. And due to this, Shylock's business going get down and down day by day. Shylock and Antonio hate to each other. The first important thing is that they are following of Christianity and Judaism, and the other thing depending the business. All these things proved here that Antonio hated the other ones who followed the other religious, and openly or publicly Antonio called many times Shylock a dog or rascal, and he thinks that Christianity is the noblest thing or noblest religion or noblest way to follow in this world. But all his negativity just hidden because he was more kindful, he was more compassionate, he was more loving and caring, he was a great friend of whom to whom he loved more in his life. All these proved here that somehow Bassanio's best friend Antonio, the greater and the nobler and the better character of the play or drama The Merchant of Venice. And many of the writers seemed or considered that Antonio played the chief and the main character of the drama or play here. प्रिय छात्रों और प्रिय साथियों, चैनल को सुनने वालों, आइए इस कैरेक्टर के बारे में हम और बात करते हैं कि एंटोनियो को जो संपूर्ण किरदार रहा है, जो संपूर्ण चरित्र रहा है, उसका हिंदी में सार क्या है। जैसा कि अभी मैंने ये प्रयास किया कि मैं आपको बेसेनियो के एंटोनियो के बारे में इंग्लिश टू इंग्लिश भी बताऊं, क्योंकि to note down the answer for our students, it's a compulsory to give the things in English so that they may improve their English and they may learn something in new way, so that they may write the things in English way. But now we are going to discuss the character about in Hindi. साथियों और प्रिय छात्रों, एंटोनियो जो कि विलियम शेक्सपियर के इस नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, सबसे महत्वपूर्ण किरदार है, सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। जैसा कि इस जो पूरे नाटक का जो टाइटल है, जो नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और यहाँ मर्चेंट का जो मीन्स है वो एक बहुत धनवान व्यापारी, बहुत ही सुप्रसिद्ध और बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि बहुत काइंडफुल, बहुत मर्सीफुल, बहुत जेनरस, बहुत कंपेंशनेट एक जो मर्चेंट है जिसका नाम एंटोनियो है, उसके बारे में इस मर्चेंट ऑफ वेनिस के टाइटल से विलियम शेक्सपियर ने समझाने और संबोधित करने का प्रयास किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि विलियम शेक्सपियर का ये जो पात्र है एंटोनियो, ये बहुत ही मुख्य किरदार इसलिए भी है क्योंकि जो संपूर्ण कहानी है वो कहीं ना कहीं एंटोनियो के इर्द गिर्द ही घूमती है, और ये एंटोनियो का किरदार ही तो था जिसकी वजह से जो बॉन्ड स्टोरी है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुई, और जिस बॉन्ड स्टोरी के घटित होने के बाद कहीं ना कहीं कास्केट स्टोरी का जो घटित होना है, जो कास्केट एपिसोड का घटित होना है, वो कहीं ना कहीं एंटोनियो के कारण ही घटित हुआ। यानी इस पूरी कहानी का जो मेन थीम है, जो ऑल इन ऑल पूरी स्टोरी जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं एंटोनियो के इर्द गिर्द चल रही है।
एंटोनियो जो कि बहुत दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा अच्छे किरदार का, बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है। लेकिन एंटोनियो कहीं ना कहीं स्वयं को बहुत ज़्यादा सैडेंड किरदार जिस तरीके से उसने यहाँ अदा किया है, और स्वयं को हर समय जो है वो दुखी प्रतीत लगता था, हर समय जो है वो कहीं ना कहीं परेशान नज़र आता था। ऐसा प्रतीत होता है कि एंटोनियो, जैसा कि वो खुद के बारे में ये रिमार्क भी करता है कई बार इस पूरे ड्रामे में और प्ले में, अपने दोस्तों से उसने कई बार कहा कि वो जो है इस पृथ्वी पर, चूंकि ये पूरी पृथ्वी जो है एक स्टेज के समान है, स्टेज की मानिंद है, और इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना अपना किरदार अदा कर रहा है, और एंटोनियो का किरदार जो है वो एक सैडफुल किरदार है, एक सैडेंड किरदार है, और ये एंटोनियो ने अपने बारे में स्वयं स्वीकार किया है। अब इसके साथ साथ एंटोनियो जो है चूँकि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने की वजह से एंटोनियो को ये लगता है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे पवित्र है, और वही रास्ता सभी को अपनाना चाहिए। जिसकी वजह से एंटोनियो जो है कहीं ना कहीं शाइलॉक, जो कि एक दूसरा किरदार है जिसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में और अगले वीडियो में जिस किरदार के बारे में हम लोग बात करेंगे, शाइलॉक के बारे में, जो कि एक ज्यू है, जो कि यहूदी धर्म को मानता है, उसको फॉलो करता है। एंटोनियो को ये लगता है कि चूंकि क्रिश्चियनिटी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और उससे बेहतर कोई मार्ग नहीं है फॉलो करने का, अपनाने का, तो शाइलॉक को वो कहीं ना कहीं इस वजह से नापसंद करता है, क्योंकि एंटोनियो जो है वो क्रिश्चियनिटी को श्रेष्ठ मानता है। एंटोनियो शाइलॉक से उसके यहूदियत की वजह से नफरत करता है। दूसरा एक कारण ये भी था कि शाइलॉक यहूदी था, और एंटोनियो ने कई बार जो है वो शाइलॉक को सड़क पर खुलेआम लोगों के सामने भरी भीड़ में अपशब्द कहकर पुकारा, कई बार उसको रास्कल कहा, कई बार उसको डॉग कह के संबोधित किया, और ये तमाम कारण थे एंटोनियो के कि वो शाइलॉक से नफरत करता था। और ये साबित भी होता है उसकी जो एक्टिविटी हैं, जो उसकी हरकतें हैं, जो उसका एक चिर परिचित अंदाज है एंटोनियो का शाइलॉक के साथ बिहेव करने का, उससे पता चलता है। लेकिन ये एंटोनियो ही हैं जिसकी वजह से बेसेनियो जो है वो बेलमोंड पहुंचने में कामयाब होता है, बेलमोंड जाकर वो पोर्शिया से शादी करने में कामयाब होता है, और एंटोनियो अपने जीवन की बगैर परवाह किए हुए शाइलॉक को उस बॉन्ड पर साइन करके थमा देता है, और इस प्रकार से उस शपथ पत्र पर एंटोनियो साइन कर देता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार से बेसेनियो का जो स्वप्न है, जो उसका अपना एक सपना है पोर्शिया से शादी करने का, वो किसी भी प्रकार से अंधकार में जाए, और बेसेनियो इस बात से दुखी, और वो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में अपने मित्र की मदद करना चाहता था। इससे ये पता चलता है कि एंटोनियो कितना काइंडफुल था, कितना दयालु था, कि वो अपने जीवन को खतरे में डाल देता है और बेसेनियो को शाइलॉक से पैसे उधार लेके मदद करता है, जो कि दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं नापसंद करते हैं, और यहाँ तक कि शाइलॉक तो उसको पूरा मारने का प्रयास करता है। लेकिन वो तो भाग्य की बात थी कि एंटोनियो जो है वो अपना मुकदमा पोर्शिया की बदौलत जीत जाता है और उसकी ज़िंदगी बच जाती है। इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी थी कि एंटोनियो ने कभी भी, यहाँ तक कि वो शाइलॉक ने अपील कर दी थी ड्यूक के सामने कोर्ट में कि उसको न्याय चाहिए, एंटोनियो पैसा देने में असक्षम हो जाता है, पैसा नहीं समय पर चुका पाता है, लेकिन इसके साथ साथ शाइलॉक के इन तमाम हरकतों के बावजूद एंटोनियो ने कभी बेसेनियो से पैसे की डिमांड नहीं करी वापस, कि मुझे मेरा पैसा वापस दो ताकि मैं शाइलॉक को पैसा वापस करके अपने जीवन को बचा सकूं। कभी उसने इस बात की मांग नहीं करी, कभी उसने पैसे की डिमांड वापस नहीं मांगा। और जब उसने बेसेनियो को याद भी किया तो उसने बेसेनियो को ये कहकर याद किया कि बेसेनियो, मैं चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ ताकि मैं अपने अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम पड़ाव पर, चूंकि अब मुझे नहीं लगता है कि मैं लंबे समय तक जी पाऊंगा, और मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने जीवन को सुरक्षित कर पाऊंगा, और चूंकि मैं असक्षम हूं पैसा चुकाने में, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर, जीवन के अंतिम समय में अपने सबसे प्रिय मित्र, सबसे सच्चे साथी से मिल सकूं, और उसको देख सकूं, उससे बातें कर सकूं, और उसके साथ थोड़ा सा समय गुजार सकूं अपना। इस बात को बेसेनियो से उसने कहा, लेकिन पैसे की डिमांड नहीं करी। ये तमाम चीज़ें इस बात को साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं एंटोनियो जो है वो इस पूरे किरदार का जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य पात्र है, और पूरे किरदार का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। एक ऐसे किरदार की ज़रूरत भी थी। जिस प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने इस पूरे नाटक को रचित किया है, जिस तरीके से इसकी रूपरेखा बनाई है, तो अगर ये बॉन्ड वाली जो एक घटना घटती है, अगर ये बॉन्ड वाली घटना नहीं घटती तो शायद आगे की जो स्टोरी जिस तरीके से
बहुत स्मूथ वे में चली है, बहुत स्मूथ वे में पूरी स्टोरी आगे चलती गई है और एक अपने अंतिम पड़ाव तक और बहुत शानदार अंदाज में इसकी समाप्ति हुई है। हो सकता है कि अगर एंटोनियो ना होता इस किरदार में और एंटोनियो इस प्रकार का किरदार अदा ना करता तो ये कहानी इतनी शानदार ना घटित हो पाती। ये तमाम चीज़ें ये साबित करती हैं कि वास्तव में इस पूरे जो प्ले है, जो पूरा नाटक है, इस पूरे नाटक का जो असली और मुख्य किरदार है वो एंटोनियो है।